Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Viewer. This is the part 7 and part 6 are in the playlist. Number 1, we will discuss about the meninges. Then we will discuss about the blood-brain barrier, the most important. Then we were discussing about the vomiting center, which is the most important. Now our concern is mainly about the meninges. Uh, the most important about the meninges, there are three membranes that surround and protect the spinal cord. You may remember with the DAP, D dura mater, then the arachnoid mater, then the pia mater. In this case, this is a dura mater in mainly involve the skull area and the periosteal area, thick layer and closest to the skull. After it is the arachnoid mater and it mainly consists of web-like connection. Dura mater, it is derived from the mesoderm, but is both arachnoid matter and the pia mater, they are derived from the neural crust. But in case of the pia mater, which is the innermost and mainly thin fibrous inner layer, and its relation is the CSF flow in the subarachnoid space. CSF flow in the subarachnoid space. Because this is the most important MCQs, this is arachnoid matter and pia mater are between the subarachnoid space is between the arachnoid and pia mater. Here not much most important, but the most important other is the blood brain barrier. अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि कोई भी चीज जो कि ब्लड को क्रॉस करके ब्रेन की तरफ जाती है तो वो इसको एज अ बैरियर के तौर पर काम करते हैं कि ताकि कोई भी ड्रग है या कोई भी चीज है ब्रेन को ना इफेक्ट करे। तो इसमें जो फोर्स स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या काम है ब्लड ब्रेन बैरियर, इट प्रिवेंट्स सर्कुलेटिंग ब्लड सबस्ट्रेट, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ड्रग्स हो। आई एम डिस्कसिंग इट विद दैट ऑफ द, इसमें चार स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फोर स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Number 1 are the tight junction between non-fenestrated capillaries. This is a tight junction. Here it is a tight junction ताकि यहाँ पे क्रॉस ना हो सके बैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद the most important है basement membrane, the outer layer. This is a basement membrane. Other is the astrocyte food processes. This is a astrocyte food processes. ये इन्हें रोक देते हैं. Then the pericytes. Glucose or amino acid they can cross, but others are cannot be transported. This is the blood brain barrier and the four structure are most important. ये तो हो गया एक blood brain related to the blood brain barrier. But other is the here circumventricular organ. ये तो हो गया blood brain barrier. Circumventricular जिनकी जो ventricles हैं, जिससे दो लेटरल वेंट्रिकल है, फिर थर्ड वेंट्रिकल है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है, क्योंकि इनके साथ साथ CSF पड़ा होता है और ब्लड, इनमें क्या होता है जो फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, इसमें चीजें क्या करती हैं गुजर जाती हैं, जिस तरह कोई भी ड्रग गुजर जाती है सर्कमबिलेट ऑर्गन्स की तरफ। अब इनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द एरिया पोस्ट्रीमिया। अब जो एरिया पोस्ट्रीमिया है ये क्या है? वोमिटिंग आफ्टर कीमोथेरापी। जिस तरह ऑर्गेनम वेस्कुलेजम लेमिना टर्मिनालिस, ये क्या ऑस्मो रिसेप्टर काम करता है और ये क्या करता है? वोमिटिंग इंड्यूस करता है, जो कि कीमोथेरापी का ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कीमोथेरापी में क्या होती है? वोमिटिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। एक तो इसमें, और दूसरा अगर आप कोई भी पार्किंसन वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो आपने उसे डोपामिन दे दिया है, तो डोपामिन भी क्या करता है? वोमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए हम उसको बड़ी एहतियात के साथ, एक तो डोपामिन यानी कि पार्किंसन वाले पेशेंट, दूसरा कीमोथेरापी वाले पेशेंट, ये दोनों वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, दोनों में वोमिटिंग। ये तो हो गया एक तो वोमिटिंग सेंटर में क्या है, यानी कि कोई ड्रग वगैरह इंटर हो सकती है वोमिटिंग सेंटर वाली जगह। दूसरी क्या है? न्यूरोसेक्रेटरी प्रोडक्ट। नंबर सेकंड इज जहाँ पे ADH रिलीज हो रहा होता है वहां भी टाइट जंक्शन नहीं होते, वहां भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट है पोस्मोलर, क्योंकि मैनिटोल है, ये क्या करती है? परमिबिलिटी इंक्रीज करा देती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कमविलेट ऑर्गन में हमने ये देखा कि भाई जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स हैं ये क्या कर सकती हैं? दैट कैन लीड टू द वोमिटिंग। अब हम देखेंगे जो वोमिटिंग सेंटर है वो कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है। आई एम डिस्कसिंग विद यू दैट ऑफ द, यहाँ पे देखें ये एरिया प्रोस्ट्रीम है, आई विल बी डिस्कस विद यू।
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वोमिटिंग सेंटर। अब जो वोमिटिंग सेंटर है ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड, किससे कोऑर्डिनेटेड होता है, मेनली न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस इन द मेडुला। अब ये जो है उससे कोऑर्डिनेट होता है मेडुला में। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा? नंबर वन, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, दिस इज द एरिया प्रोस्ट्रिग्मा, अदर फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर सिस्टम, देन द सीएनएस। अब मैं इसको डायग्राम के जरिए दिखाता हूं। यहाँ पे जो वोमिटिंग सेंटर है, दिस इज द वोमिटिंग सेंटर एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नंबर वन इज द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये भी क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है। इसी तरह सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, जीआई सिस्टम भी और वेस्टिबुलर सिस्टम भी। तो यहाँ पे क्या है कि चार सिस्टम है। नंबर वन इज द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, देन जीआईटी, देन वेस्टिबुलर, देन द सीएनएस। ये जो चार सिस्टम है, नंबर 1, 2, 3 एंड द 4, ये क्या करते हैं, वोमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब जो वोमिटिंग सेंटर है, ठीक है, उसमें ये क्या रिसीव करता है, 5 टाइप्स ऑफ मेजर रिसेप्टर, जिसमें मस्करीनिक है, डोपामीन है, हिस्टामीन है। अब मैंने आपको डोपामीन का ये बताया कि डोपामीन भी क्या करता है, वोमिटिंग को एक्टिवेट कर देता है। और ये सेरोटोनिन 5-HT3 ये भी वोमिटिंग को एक्टिवेट कर देता है। अब इसमें क्या है, अगर किसी को कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग हो रही है तो हम ये देंगे उसे 5-HT3D2 NK न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट यूज टू ट्रीट कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग। उसी तरह से अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो H1 एंड M1 एंटागोनिस्ट देंगे, और किसी को हाइपर इमिसिस हो रही है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, ग्रेविडेरियम, उसको भी H1 एंटागोनिस्ट देंगे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और ड्रग है ऑन्टनसेट्रॉन, who we will discuss in the pharmacology. This is not here so much important. That we all discuss about the meninges, then the blood-brain barrier, and then the vomiting center. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel, Medicos Fever, and remember us in your prayers. Allah Hafiz.